गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। हमने कुछ एक इसकी इंट्रोडक्शन ट्रांसक्रिप्शन की, दैट हाउ कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड वर्क, हमने इस चीज़ पे काम कर लिया था। नाउ देयर इज समथिंग लेफ्ट टू डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, सो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. What is transcription? As you know that when DNA makes its own complementary strand, that is known as mRNA. Simply DNA template strand of DNA codes for mRNA. ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कोड्स फॉर mRNA. यहाँ आपकी जो एनसीईआरटी जैसे बताया गया है, दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से बना लीजिए इसको, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. 5 to 3 prime is coding strand and this is template strand. Okay, and as I told you that the whole of DNA molecule does not participate in the transcription process or mRNA synthesis. Only a few regions or only a few, actually you can say a segment of DNA participates in the synthesis of mRNA, or the transcription takes place in a segment of DNA molecule. So this is a coding strand and this is a template strand. और ये सब चीजें स्ट्रेट अप कैसे हुई, ये सीधी कैसे हुई, जैसे ही इस पे आरएनए पॉलीमरेज ने वर्कआउट करना शुरू किया. ओके, सो दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. ये वो पर्टिकुलर सेगमेंट है उस डीएनए मॉलिक्यूल का जहां पे एमआरएनए सिंथेसिस होगी. गॉट इट? सो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए where 5 prime to 3 prime strand is known as coding strand and 3 prime to 5 prime strand is known as template strand. Its name is coding strand, but it's very strange that uh, this coding strand does not code for any protein. सिर्फ इसका नाम ऐसा है, बाकी ये कुछ भी काम यहाँ पे नहीं करता. But this template strand involves in the synthesis of messenger RNA, that is mRNA. So here is the promoter site, or you can say initiator. यहाँ पे initiate होगी चीजें. Here is terminator site, or you can say stop point, और ये initiator point है यहाँ पे. Okay, what happens? First of all, first step, as you know that RNA polymerase is the prominent enzyme which is responsible for this the process of DNA transcription. याद रखना इस चीज को. So RNA polymerase is a main enzyme involved in DNA ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, इसमें ये इन्वॉल्व है. पर होगा क्या, शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत होगी, यहां से करता हूं मैं, सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, एक तरह का एंजाइम ही है एक्चुअल में. दिस सिग्मा फैक्टर एक्चुअली enables the RNA
polymerase enzyme to bind on promoter site of DNA segment। यानी यहां पे देखिए इस एरिया में क्या आएगा, यहां पे ये सिग्मा फैक्टर आएगा और ये सिग्मा फैक्टर साथ में किसको लेकर आएगा, RNA polymerase को। That means this sigma factor enables the binding of RNA polymerase enzyme on this promoter site of this DNA segment, which is involved in the transcription process or mRNA synthesis. So as this sigma factor involves, or this sigma factor enables the binding of RNA polymerase, once RNA polymerase binds the promoter site, जैसे ही ये RNA polymerase इस सिग्मा फैक्टर की मदद से इस प्रमोटर साइट पे बाइंड करेगा, मतलब सिग्मा फैक्टर का काम हो गया। इसका काम क्या था, सिर्फ इसको बाइंड करवाना RNA polymerase को उस प्रमोटर साइट के ऊपर। जैसे ही सिग्मा फैक्टर का काम हो गया, after the binding of RNA polymerase on this promoter site, this sigma factor dissociates. Okay, so this would dissociate, this sigma factor would dissociate from here, and now RNA polymerase is free to perform its activity. अब ये RNA polymerase अब activity perform करने के लिए free है। Okay, तो अब ये काम करना शुरू करेगा इस डायरेक्शन की ओर। अब ये ऐसे चलना शुरू हो जाएगा RNA polymerase, ठीक है। अब आप इस तरह से समझिए कुछ चीज, जैसे मैंने ये चीज बनाई थी, फाइव थ्री थ्री एंड 5 कोडिंग स्ट्रैंड, पैसिव स्ट्रैंड। और यहां मैंने क्या बता रहा हूं, यहां पे क्या काम चल रहा है, यहां पे काम आ रहा है ये RNA polymerase और एक्टिविटी करेगा ये इस डायरेक्शन की ओर। और जैसे ही एक्टिविटी करना शुरू करेगा, साथ साथ में ये एडप्ट करता जाएगा इन न्यूक्लियोटाइड्स को। बनाना क्या है, बनाना है mRNA सिंथेसिस। तो RNA बनाना है तो याद रखिएगा आप कि थाइमिन की जगह पे वहां क्या चाहिए, यूरेसिल। बाकी के सारे जो बेसिस हैं वो सेम रहेंगे, आपके पास एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा, लेकिन थाइमिन की जगह आपको वहां पे क्या लगाना है, इस पे यूरेसिल, क्योंकि बन क्या रहा है वहां पे mRNA। और mRNA और RNA या DNA में यही फर्क होता है, बेस पेयर दैट इज यूरेसिल इन केस ऑफ RNA एंड थाइमिन इन केस ऑफ DNA। सो जैसे जैसे ये एक्टिविटी करता जाएगा ये यहाँ पे जुड़ते जाएंगे अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ। ऑलवेज डू रिमेंबर कि यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये जुड़ेंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये जुड़ते जाएंगे, यानी ये यहाँ पे आगे से आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, यहाँ से निकलता जाएगा, ये बनता इस तरह से कुछ होगा। ये ऐसे जब ऐसे लगा दी और यहाँ पे बनता जाएगा ये mRNA से 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर, along with this what is this triplet codons. There are 64 triplet codons for specific amino acids. There are 64 triplet codons on this mRNA which code for स्पेसिफिक और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया पूरा बॉक्स बनाया है वो, ठीक है। मैंने क्या कहा, RNA पॉलीमरेज ऐसे एक्टिविटी करेगा और यहाँ पे चीजें जुड़ती जाएंगी फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर, और एंड में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम विद दिस
जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए AUG है, GUG है, लाइक दैट, दीज आर ट्रिपलेट कोडॉन्स। यानी हर एक ट्रिपलेट कोडॉन एक स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए अमीनो एसिड है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए जो है कोडिंग करता है ये, ठीक है। चाहे वो थाइमिन हो गया लाइक दिस, ठीक है, मिथ्योनिन हो गया, सो आर्जिनिन हो गया, लाइसिन हो गया, वैसे डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए ये कोडिंग करेंगे दिस ट्रिपलेट कोडॉन्स। लेकिन अभी जो ये एमआरएनए जस्ट बना है इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद, दिस इज इमेच्योर एमआरएनए। सो दिस इज इमेच्योर आरएनए। इसका क्या बनेगा ये? फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर एमआरएनए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इमेच्योर आरएनए का बनने का मतलब ये है दैट रेसिड्यूज कैसे बनाते हैं? 5 to 3. So there are certain areas in this mRNA, exons, introns, coding regions, non-coding regions. That means these parts or these exons or these segments or mRNA which are known as exons, they code for proteins. But these segments known as introns, they do not code for any protein or known as non-coding regions, हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं इसमें। अब ये इमेच्योर एमआरएनए है, हमें क्या चाहिए? काम की चीज, और काम की चीज क्या है? कोडिंग, जो कि कोड करेंगे प्रोटीन्स के लिए। यानी काम की चीज क्या है? एक्सोन। ये काम की चीज नहीं है, इंट्रॉन्स इज नॉट अ काम की चीज। तो वी हैव टू remove these introns segment from this immature mRNA to make it mature one. तो यहां पे आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आप जान लीजिए mRNA capping is done. This mRNA capping फाइव प्राइम कैप यहाँ पे ऐड करेंगे एंड पॉली ए टेल, ए एडेनिन, पॉली ए टेल के सारे एडेनिन यहाँ पे लगे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फाइव कैप और ये पॉली ए टेल, और साथ में इन एंट्रॉन्स एंड इंट्रॉन्स रिमूव, इंट्रॉन्स वहां पे रिमूव कर दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग यानी स्प्लाइस यानी जो काम की चीज नहीं, दैट इज इंट्रॉन, क्योंकि नॉन कोडिंग रीजन से उनको वहां से निकाल दिया गया। नाउ दिस एमआरएनए हैज बिकम मैच्योर वन with this poly A tail and 5 prime cap. इनका काम, what is the function of this actually this tail, poly A tail and this 5 prime cap? इनका फंक्शन ये है कि जैसे ये mRNA उस न्यूक्लियस से निकल के जब जाएगा ये साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वहाँ पे कई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस mRNA को कोई डैमेज ना हो, तो उसे बचाने के लिए यहाँ पे टेल जो है यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। तो ये नेचुरल फिनोमिनन है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी डैमेज टू दिस एमआरएनए। जैसे ही एमआरएनए साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। सो दिस इज व्हाट द ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल अबाउट। प्रोमोटर साइट, दिस इज टर्मिनेटर साइट, ओके। और यहाँ पे दिस इज अ टैबलेट स्ट्रैंड, दिस इज अ कोडिंग स्ट्रैंड, और आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से एक्टिविटी करेगा जैसे मैंने आपको बताया। और साथ में यहाँ पे एमआरएनए ट्रिपलेट कोडॉन के साथ बनता जाएगा। और याद रखना, एमआरएनए जो सिंथेसिस होगी हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम,
ओके, ये हमेशा आपने याद रखनी चीज को, mRNA सिंथेसिस ऑलवेज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। थैंक यू।